بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہے کتاب کا نواں سبق اور ہمارا سبق 10 چل رہا ہے یہ۔ تو اس سے پہلے ہم نے فعل ماضی پڑھا تھا۔ کل کا سبق آپ لوگوں نے جو ریکارڈنگ بھیجی تھی وہ سن لی ہوگی، امید ہے، جو لوگ لائیو سبق میں نہیں تھے۔ تو فعل کی دوسری قسم ہے یہ، ٹائپ آف ورب میں سے ہے۔ پہلا تھا پاسٹ، اب یہ ہے المضارع یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ مضارع میں دونوں فعل آتے ہیں، پریزنٹ بھی آتا ہے فیوچر بھی آتا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے آج۔ اب یہاں پر اس کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں۔ مضارع وہ فعل ہے جس سے کام کا کبھی تو زمانہ حال میں اور کبھی زمانہ آئندہ میں ہونا پایا جائے۔ ڈیفینیشن انگلش میں دیکھ لیجئے، دوز verbs which indicate present and future tense are called مضارع۔ اب جیسے یہ ہے یفعلو، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ اوپر آپ نے ٹیبل پڑھی ہوگی، اوپر ٹیبل آئی تھی نا، یفعلو یفعلانی یفعلونا کر کے پوری ٹیبل تھی، اس میں پہلا جو ورڈ تھا وہ یفعلو تھا، پہلا جو صیغہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یفعلو کا ٹرانسلیشن ہوگا ہی ول ڈو اور ہی ول بی ڈوئنگ۔ یہ جو ہے تھوڑا سا انہوں نے الگ کر دیا یہاں پہ، چلیے آگے چلتے ہیں۔ اس میں ویسے یہ ہوگا پریزنٹ کے حساب سے ہی ڈز اور ہی ول ڈو اور ہی ول بی ڈوئنگ، اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا۔ اب کتاب لکھنے والوں نے کیا سوچ کے لکھا ہے وہ آگے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع 3 اوزان پر آتا ہے، یعنی اس کے وزن 3 ہیں۔ جیسا کہ ماضی میں ہم نے دیکھا تھا، عین کلمے پہ 3 حرکت آ رہی تھی، پیش بھی آ رہا تھا، زبر بھی آ رہا تھا، زیر بھی آ رہا تھا، جیسے فاؤلا، فائلہ اور فعلا، تینوں طریقے سے آ رہا تھا۔ ایسے ہی مضارع میں بھی ہے۔ تو فعل مضارع 3 اوزان پر آتا ہے، یفعلو، یفعلو اور یفعلو، یعنی حرف عین پر تغیر واقع ہوتا ہے، یعنی جو بیچ کا جو حرف ہے عین، اس پر حرکت تبدیل ہوتی ہے۔ یعنی کبھی یہ کسی فعل میں یفعلو ملے گا آپ کو، کسی فعل میں یفعلو ملے گا اور کسی میں یفعلو ملے گا۔ ان کی مثالیں جیسے خارجہ ہے، ماضی میں خارجہ آتا ہے، اسی کو مضارع میں لے کر آئیں گے تو یخرجو ہو جائے گا پیش کے ساتھ، یخرجو۔ ایسے ہی جلسہ ہے، جلسہ کو جب مضارع بنائیں گے تو وہ یجلسو ہو جائے گا، یجلسو۔ نیچے انہوں نے مثالیں بھی دے رکھی، مثالیں ہی دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے یفعلو کی مثالیں، یذہبو، یفتحو، یشربو، یسمعو۔ وہ جاتا ہے یا جائے گا، وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، وہ پیتا ہے یا پیے گا، وہ سنتا ہے یا سنے گا۔ دیکھیے مضارع میں دونوں ٹرانسلیشنز ہو رہی ہیں۔ اب ہے یفعلو کا وزن، یجلسو، یحسبو، یغسلو اور یضربو۔ یجلسو وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، یحسبو وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا، یغسلو وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ اب یفعلو کا وزن جس میں عین پر پیش ہو، اور ان کو جو ہے نا ان کا لحاظ بہت رکھنا ہے، جب بھی آپ کسی بھی فعل کو پڑھیں گے عربی میں تو عین پر جو حرکت آ رہی ہے، جو اس فعل کے لیے آتی ہے عین پر حرکت، وہی آپ کو لینی ہے۔ یعنی جو درمیانے حرف پر جو حرکت ہے اس کو آپ کو باقی رکھنا ہے، اس کو چینج نہیں کر دینا ہے۔ جیسے یدخلو کو یدخلو نہیں پڑھیں گے آپ، اس کا بہت لحاظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یفعلو کی مثالیں، یدخلو، یأکلو، ینصرو اور یکرمو۔ دیکھیے وہ اندر آتا ہے یا آئے گا، وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، وہ عزت کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا، یہ مثالیں ہو گئیں۔ مضارع بنانے کا طریقہ کیسے بنایا جائے گا؟ مضارع ماضی سے بنتا ہے، ماضی ہے فعالہ، تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں یا، تا، الف، نون میں سے ایک حرف اس طرح لگایا جاتا ہے، یعنی ان چاروں میں سے ایک حرف لگا دیں۔ آئیں گے چاروں لیکن الگ الگ فعل کے لیے آئیں گے، جیسے جمع کے لیے آئے گا کچھ، اور مؤنث کے لیے کچھ آئے گا، مذکر کے لیے کچھ آئے گا،
कुछ मुतकल्लिम के लिए आएगा तो चारों हर्फ इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये नहीं कि एक ही में चारों हो जाएंगे, अलग अलग जगह होंगे। तो पूरी गर्दान में ये चारों हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें से एक को लगा देंगे आप किसी भी माजी के फेल के शुरू में, तो उससे क्या बन जाएगा, वो मुजारे बन जाएगा। देखिए, या चार सीगों के पहले आती है, यानी फाला से जो आप चार सीगे लेंगे ना, तो उनमें या आती है पहले चार में, जैसे फाला, फाला, फालू, फालत। तो इस तरीके से जो है, इसको जब मुजारे में आप तब्दील करेंगे तो शुरू के चार सीगे उसमें या आएगी। या चार सीगों के पहले आती है, तीन मुजक्कर गायब और या एक जमा मुन्नस गायब। तो चार सीगे ऐसे हैं जिनमें या आती है। ता आठ सीगों के पहले आती है, दो वाहिद और तस्निया और मुअन्नस गायब और छह मुजक्कर और मुअन्नस हाजिर। अब ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी नीचे हम प्रैक्टिकली देखेंगे इन सब चीजों को। अलिफ या हमजा आप कह सकते हैं, एक सीगे के पहले आता है, यानी वाहिद मुतकल्लिम। वाहिद मुतकल्लिम जब बात करेंगे, यानी वहां पे था फालतू, तो यहाँ पर जब हम उसे मुजारे में कन्वर्ट करेंगे तो अलिफ पहले आ जाएगा, यानी हमजा पहले आ जाएगा। नून एक सीगे के पहले आता है, यानी जमा मुतकल्लिम, जैसे वहां पे था फाल ना, जमा मुतकल्लिम में, और यहाँ पे जो है नून से शुरू होगा। अभी हम देखते हैं इसे। नोट, या ता अलिफ नून पर जबर आता है और इसके बाद का हर्फ फा मजजूम होता है, यानी इन पर हम जबर पढ़ेंगे हमेशा, इन हुरूफ पर, और इनके बाद जो भी हर्फ आएगा वो साकिन होगा, उस पर कोई हरकत नहीं पढ़ेंगे हम। अच्छा, मुजारे का आखिरी हर्फ पांच जगह मरफू होता है, यानी पांच मुजारे के अंदर ऐसे इस गर्दान में, इस टेबल में पांच अफाल ऐसे हैं, पांच सीगे ऐसे हैं जिन पर पेश आएगा। वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद वाहिद मुजक्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, इन्होंने बता दिए ये सीगे। चार तस्नियों के आखिर में नून मकसूरा आता है, यानी वो नून जो हमें तस्निया में मिलता है, जैसे रजुलानी में, ऐसा ही नून नून मकसूर कहते हैं इसे। नून मकसूरा हमें चार तस्निया के सीगों में मिलता है, यानी जो चार इस अभी हम करदान देखेंगे तो उसमें चार सीगे ऐसे हैं जिसके आखिर में नून मकसूरा मिलेगा। तीन जगह नून मफ्तूहा, यानी वो नून जैसे मुस्लिमूना में था, मुस्लिमूना वाला नून जो है वो आपको तीन जगह मिलेगा मुजारे की गर्दान में। और नून नून एराबी, और उसको नून एराबी कहा जाता है, यानी तस्निया का नून और जमा का नून, इसे नून एराबी कहा जाता है। जमा मुजक्कर गायब और हाजिर और वाहिद मुअन्नस हाजिर में, इन सब जगहों में क्या होता है, नून मफ्तू होता है। हाँ, जमा मुअन्नस गायब और हाजिर के आखिर में भी दो जगह नून मफ्तूहा आता है, मगर उसको नून जमीर कहते हैं। ये जमीर फाइल है, ये जमीर फाइल है और कभी साकित नहीं होती। यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि मुजारे के पांच अल्फाज ऐसे हैं जिन पर पेश आपको दिखेगा आखिर में, यानी एराब क्या होगा, पेश। एराब किसे कहते हैं, किसी भी वर्ड, किसी भी कलिमे के आखिरी हर्फ पर जो हरकत है उसे एराब कहते हैं। तो एराब हमेशा पेश का होगा मुजारे के पांच अल्फाज में, मुजारे के पांच अल्फाज में। और चार अल्फाज ऐसे होंगे जिनमें आखिर में नून मकसूरा मिलेगा, वो तस्निया के नून है। और तीन जगह ऐसे होंगे जहां पे नून मफ्तूहा मिलेगा, वो जमा के नून है। लेकिन दो जमा के ऐसे नून हैं, वो मुअन्नस के लिए हैं, जो कभी भी गिरते नहीं। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि चार तस्निया वाले नून और तीन जमा वाले नून, ये किसी कंडीशन में हम छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे हमने अभी मुजाफ मुजाफ इलैह पढ़ा था ऊपर, तो हमें पता था वहां पर कि जब जमा मुजक्कर सालिम या तस्निया को मुजाफ बनाएंगे तो नून गिर जाएगा। याद होगा ना आपको? कोई बताए अगर ये चीज याद हो अभी, या फिर ये बातें मैं बता रहा हूँ समझ में आ रही हो आपको? समझ में आ रही ना आपको मैं क्या बता रहा हूँ, सोहेल भाई? हाँ, तो
जमा मुजक्कर जमा सालिम, जमा मुजक्कर सालिम में नून गिर जाता है और तस्निया में नून गिर जाता है मुजाफ बनाने में। ऐसे ही जब फेल में ये नून आते हैं तो ये किसी कंडीशन की वजह से गिर जाते हैं। लेकिन जमा मुअन्नस गायब और हाजिर का नून ऐसा है जो नहीं गिरता है, क्योंकि वो नून ये बताता है कि यहाँ पर ये जमा मुअन्नस है, और ता और या जब शुरू में आती है तो उससे पता चलता है ये हाजिर है या गायब है। हाजिर यानी सेकंड पर्सन, गायब यानी थर्ड पर्सन। ठीक है। अब ये बता रहे हैं मुजारे का तीसरा हर्फ कभी मफ्तू होता है जैसे यफालू, कभी मकसूर होता है जैसे यफेलू, और कभी मजमूम होता है जैसे यफोलू। ये चीज ऊपर भी बता चुके हैं। अब देखें यहाँ पे तसरीफ फ़ेल मुजारे मारूफ। मारूफ आपको पता है जिसमें सब्जेक्ट हमें पता हो, काम करने वाला कौन है, उसे मारूफ कहते हैं। तो देखिए यनसुरु पहले सीगे में पेश आ रहा है, यनसुरानी यहाँ पे नूने मकसूरा है, यनसुरूना यहाँ नूने मफ्तूहा है। तो दो सीगे हमें मिल गए, एक नूने मकसूरा, एक नूने मकसूरा के साथ, हाँ, और नूने मफ्तूहा के साथ, और एक हमें सीगा मिला जिसपे आखिर में हमें पेश दिख रहा है। ठीक है। अब तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना, यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये दूसरा सीगा मिल गया पेश के साथ, नूने मफ्तूहा, सॉरी नूने मकसूरा दूसरा मिल गया हमें। अब ये नूने मफ्तूहा है लेकिन ये इससे अलहदा है। क्यों? क्योंकि ये नून गिर जाएगा लेकिन यंसुरना का नून नहीं गिरेगा किसी भी हालत में। अब देखिए तंसुरु तीसरा हमें लफ्ज मिल गया जिसके आखिर में पेश है। हमें 5 बताए गए थे ना, तो 3 हमें मिल चुके हैं। और तंसुरानी ये नूने मकसूरा हमें तीसरा मिल चुका, तंसुरूना नूने मफ्तूहा हमें दूसरा मिल चुका। पहला ये है, दूसरा ये है, इसे गिनते रहिएगा। तंसुरीना, तंसुरीना, अब यहाँ पे नूने मफ्तूहा हमें तीसरा मिल चुका है। तंसुरानी नूने मकसूरा हमें चौथा मिल चुका है। ऊपर बात हुई थी ना कि 4 नूने मकसूरा और 3 नूने मफ्तूहा, तो बात हो गई बिल्कुल वाज़ेह। देखिए यहाँ पे पहला नून मकसूरा, यहाँ दूसरा नून मकसूरा, यहाँ तीसरा नून मकसूरा, और यहाँ चौथा नून यानी कसरे के साथ, जेर के साथ। यहाँ पहला नून फतह के साथ, यहाँ पे दूसरा नून, और ये तीसरा नून जमा मुअन्नस हाजिर का नून। ठीक है, 3 नून हो गए मफ्तूहा और 4 नून हो गए मकसूरा। अब हमने 3 ऐसे अल्फाज देखे थे जो पेश के साथ आ रहे हैं, जैसे यनसुरु, तनसुरु, तनसुरु। तनसुरु 2 बार आ रहा है, एक मुअन्नस गायब के लिए भी आता है, एक मुजक्कर हाजिर के लिए भी आता है। तो देखिए तीनों पेश वाले आ गए। अब नीचे आ जाइए, 2 ये रहे, अनसुरु और ननसुरु। अनसुरु, ननसुरु 5 हो गए पेश वाले। और तनसुरना ये वाला नून कभी नहीं गिरेगा, ये यनसुरना की तरह है। यनसुरना से पता चल रहा है ये गायब मुअन्नस है, और तनसुरना से पता चल रहा है ये हाजिर मुअन्नस है। तो ये पूरा पोस्टमार्टम हो गया इस टेबल का, आपको पता चल गया कि इस टेबल में कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। और उनके तर्जमे बस आपको याद करने हैं। यनसुरु का क्या तर्जमा होता है, वो मदद करता है या करेगा। 3 थर्ड पर्सन के लिए है, मुजक्कर के लिए है मैस्कुलिन, 3 फेमिनिन के लिए है, फीमेल के लिए है, मोअन्नस के लिए थर्ड पर्सन। ऐसे ही सेकंड पर्सन में 3 मर्द के 3 औरत के, और फर्स्ट पर्सन में मर्द औरत का कुछ भी मतलब इसको स्पेसिफाई नहीं किया है, दोनों के लिए आते हैं ये। तो ये मारूफ था, हमें इसमें सब्जेक्ट का पता था। अब ये आ गया मजहूल। देखिए जैसे माजी का जो मजहूल बनता है उसमें आइन पर कोई भी हरकत हो, जब उसका मजहूल बनाएंगे तो उसकी हरकत कांस्टेंट हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी, यानी उसमें फिर कोई तब्दीली नहीं होगी, चाहे वो यफइलू हो, यफउलू हो या यफालू हो। जब हम उसका मजहूल बनाते हैं तो मजहूल का एक ही कायदा है। मुजारे में, माजी में क्या था, पहला जो हर्फ है उस पर पेश होगा, दूसरे पे हमेशा जेर होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से जो है ये बनता है मजहूल।
युनसरु बनेगा इसका जो मजहूल है। और युनसरु में कैसे होगा कि पहला जो हर्फ है उस पर पेश दिया जाएगा, उसके बाद जो आइन कलीमा होगा उस पर जबर दिया जाएगा। आइन कलीमा क्या है यहाँ पर? स्वाद है, स्वाद। ठीक है, युनसरु में स्वाद आइन कलीमा है, यानी आइन की जगह पर है। युफअलु में अगर हम आइन देखें उसी जगह पर स्वाद है, युनसरु। तो इसी तरीके से आखिर तक होगा और स्वाद पर जबर ही रहेगा। युनसरु युनसरानी युनसरूना, तुनसरु तुनसरानी युनसरना, तुनसरु तुनसरानी तुनसरूना, तुनसरीना तुनसरानी तुनसरना, उनसरु नुनसरु। इसमें हमें सब्जेक्ट नहीं पता होता, इसमें बात ऑब्जेक्ट पर ही पूरी हो जाती है। वो मदद किया जाता है या किया जाएगा, उसकी मदद की जाती है या की जाएगी, दरअसल ये है। वो समझाने के लिए यहाँ पे, ताकि पता चले कि इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो है, यानी जिसकी भी मदद की जा रही है वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का इसमें नहीं पता। तो ये है मजहूल। अब देखिए मनफी। मनफी में इसमें क्या करते हैं, माजी में तो हम माँ लगा देते थे, माँ, लेकिन मुजारे में माँ नहीं लगेगा, ला लगेगा, ला। जैसे ला यंसुरु, ला यंसुरानी, ला यंसुरूना, सारी चीजें सेम होंगी, बस ये शुरू में ला लग जाएगा। और तर्जुमे में क्या तब्दीली होगी, वो मदद नहीं करता या नहीं करेगा, ये बस ट्रांसलेशन में चेंजेस आ जाएंगे। बाकी गर्दान एज इट इज है। मजहूल की ये होगी ला युनसरु, वो मदद नहीं किया जाता या नहीं किया जाएगा, बस इसमें ये ट्रांसलेशन में डिफरेंस आ गया। अब आ जाते हैं तसरीफ फ़ेल मुजारे मारूफ व काना। अब काना के साथ भी इसकी जो है वो आती है। जब काना जब लगा देते हैं फ़ेल मुजारे से पहले, तो इसका ट्रांसलेशन होता है जैसे ही यूज्ड टू हेल्प, यानी माजी में, पास्ट में कोई काम बार बार करना या करते रहना। तो इस तरीके का जो ट्रांसलेशन होता है वो काना से दिया जाता है मुजारे के साथ। जैसे कि वो मदद करता था या वो मदद कर रहा था, दोनों ट्रांसलेशन हो सकते हैं, इन्होंने एक ही दिया है। काना यंसुरु, वो मदद करता था। ही यूज्ड टू हेल्प, काना यंसुरानी। जैसा माजी में था, दोनों में हर हुरूफ को तब्दील कर रहे थे, यानी काना में जब अलिफ बढ़ाया, यंसुरानी में बढ़ाया, तो काना में भी बढ़ाया। काना की गर्दान भी आगे बढ़ती रहेगी और यंसुरु की गर्दान भी आगे बढ़ती रहेगी, एक एक सीगे की तरह। तो ये दोनों एक जैसे होंगे, नहीं अगर इसमें अगर ये वाहिद मुजक्कर गायब है और ये तस्निया, तो दोनों ही तस्निया नजर आएंगे। ऐसा नहीं काना तो काना ही रहेगा और यंसुरानी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, दोनों ही तब्दील होंगे। तो दोनों में तब्दीलियां आ रही है, देखिए दोनों में तब्दीलियां आ रही है। तो इसका तर्जमा ये होता है काना के साथ, फेले मुजारे के साथ। तशरीफ फेले मुजारे मजहूल व काना, काना युनसरु, वो मदद किया जाता था। ही वॉज बींग हेल्प्ड, ही वॉज बींग हेल्प्ड। ठीक है, तो इस तरीके से होगी ये काना के साथ। अब बलाम मफ्तूह, लाम मफ्तूह के साथ इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? लयन सुरु, लयन सुरु, अलबत्ता वो मदद करता है या करेगा, अलबत्ता वो दोनों मदद करते हैं या करेंगे। तो लाम के साथ इस तरीके की ट्रांसलेशन होती है। और लाम जो लेकर आते हैं, थोड़ा सा बात में पुख्तगी लाने के लिए लाम को लेकर आते हैं। ऐसा लाम जिस पर जबर हो, ऐसा लाम लेकर आते हैं जिस पर जबर हो, ताकि बात जो है थोड़ी सी ऐसी लगे कि मजबूत है, तो उसके लिए लाम को लेकर आते हैं शुरू में। और ऐसा लाम जो मफ्तू हो। ठीक है, मजहूल में भी ऐसी है, अलबत्ता वो मदद किया जाता है, ये किया जाएगा, तो ये इसीलिए लाते हैं लाम को। अब देखिए मारूफ की गर्दान है सीन के साथ। सीन जो है वो खास कर देता है उसको आइंदा जमाने के साथ, मुस्तकबिल के साथ, यानी उसमें अब मौजूदा जमाने का मतलब नहीं रहेगा, उसमें आने वाले जमाने का मतलब रहेगा। जैसे सयंसुरु, वो अनकरीब मदद करेगा। अब ये मदद करता है का तर्जमा नहीं होगा, अब सिर्फ यही होगा कि वो मदद करेगा। ही विल हेल्प सून, तो सीन लगाने से वो खास हो जाता है
फ्यूचर में। तो सीन देखिए ऐसे लगता है सारे सीगों में, सयंसुरु सयंसुरानी सयंसुरुन सयतंसुरु सतंसुरानी सयंसुरना सतंसुरु सतंसुरानी सतंसुरुन सतंसुरीन सतंसुरानी सतंसुरना सअंसुरु सनंसुरु। ऐसे ही मजहूल में वो अनकरीब मदद किया जाएगा, सयुनसरु। अब देखिए सौफा, सौफा और सीन में ये फर्क है कि सौफा फ्यूचर में भी जो पास का जमाना होता है ना फ्यूचर में, यानी आइंदा जमाने में भी जो मुजारे से यानी मौजूदा जमाने से करीब होता है उसके लिए आता है, और ये जो है दूर के लिए आता है सौफा। सौफा इसमें मतलब ये नहीं है कि ये करीब के लिए, बस ये फ्यूचर में होगा। सौफा यंसुरु, वो थोड़ी देर बाद मदद करेगा। तो सौफा में थोड़ा सा और इसमें डिफरेंस है। सीन जो है फ्यूचर में भी थोड़ा पास पास के लिए आता है, और सौफा जो है दूर के लिए आता है। वो थोड़ी देर बाद मदद करेगा, सौफा यंसुरु, वो दोनों थोड़ी देर बाद मदद करेंगे, इस तरीके से इनका ट्रांसलेशन होगा। और इसका मजहूल भी ऐसी होगा, सौफा युनसरु, वो थोड़ी देर बाद मदद किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अन लगा दिया, अन अन मसदरिया भी कहते हैं इससे। अन से क्या ट्रांसलेशन होगा? अन से ट्रांसलेशन ऐसे होगा, के शुरू में लगा देंगे, के, जैसे यहाँ पर इन्होंने लगाया है, के वो मदद करेगा, के वो मदद करेगा। इंग्लिश में दैट लगा देंगे, दैट, दैट, दैट ही विल हेल्प, दैट ही विल हेल्प। तो इंग्लिश में दैट लगा देंगे और अरबी में अन लगा देंगे, तो ट्रांसलेशन होगा के वो मदद करेगा। या फिर ट्रांसलेशन में कभी कभार उर्दू के हिसाब से, उर्दू के मुहावरे के हिसाब से यूं भी कहते हैं, ये है कि, किसी भी ट्रांसलेशन करते वक्त जब ट्रांसलेट करेंगे उससे पहले अगर ये लगा देंगे हम, ये है कि, ये है कि, या फिर सिर्फ के लगा दिया, के, जैसे ये यहाँ पर आ रहा है के लगा दिया, या फिर लगा दिया ये है कि, तब भी वो अन का ही ट्रांसलेशन कर अन का तर्जमा हो जाएगा उससे। अयंसुरा, अयंसुरा, और इसमें तब्दीली क्या आएगी अन के लगाने से, कि जिन पर पेश आता है 5 अल्फाजों पर उन पर जबर आएगा। जहां पर नूने मफ्तूहा और नूने मकसूरा था 7 जगह, 4 नूने मफ्तूहा, सॉरी 4 नूने मकसूरा और 3 नूने मफ्तूहा, वो सारे गिर जाएंगे। और जहां पर नूने मुअन्नस था, जमा का नून मुअन्नस, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए इसकी गर्दान, अयंसुरा अयंसुरा अयंसुरु, नून गिर गया। अंतनसुरा अंतनसुरा अयंसुरना, इस वाले नून पे कोई फर्क नहीं आया। अंतनसुरा अंतनसुरा अंतनसुरु अंतनसुरी, यहाँ पर भी नून गिर गया। अंतनसुरा अंतनसुरना अनसुरा अननसुरा। तो इस तरीके से होगा। ये मजहूल में भी इसी तरीके से होगा कि वो मदद किया जाए, कि वो मदद किया जाए, कि वो दोनों मदद किए जाएं। तो इस तरीके से आखिर तक। अब लन, लन क्या करता है? लन जो है वो नेगेटिव मीनिंग देगा और थोड़ा ताकीद के साथ, यानी लन लगाने से ऐसा होगा कि वो फ्यूचर में ही उसको आइंदा जमाने के लिए खास कर देगा, और उसमें नेगेटिव मीनिंग होगा और उस पर जोर भी होगा, इम्फेज भी करेगा उस पर थोड़ा सा। जैसे कि लयन सोरा, देखिए लन से जो भी तब्दीली होगी वो वही होगी जो अन से हो रही थी, यानी अन के बाद जो भी फेले मुजारे में तब्दीली हुई वही तब्दीली लन से भी होगी। जहां पर पेश है वहां जबर आ गया, नून गिरा दिया, और जमा मुअन्नस के नून को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यही तब्दीली लन से भी होगी। और तर्जुमे में क्या फर्क पड़ेगा? वो हरगिज मदद नहीं करेगा, वो हरगिज मदद नहीं करता है, ये नहीं होगा तर्जुमा, ये होगा कि वो हरगिज मदद नहीं करेगा। फ्यूचर में चला जाएगा और नहीं के मतलब देगा और थोड़ा सा जोर पैदा करेगा बात में। ही विल नेवर हेल्प, लयंसुरा, वो दोनों हरगिज मदद नहीं करेंगे। तो लन से ये तर्जुमे में तब्दीली आएगी। ये मजहूल भी देख लीजिए। अब आ गया कई, कई, कई का जो है आपने, मेरे जहन में नहीं है, हो सकता है कुरान करीम में भी कई इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन कई इस्तेमाल होता है, अन की तरह होता है ये। और इसका ट्रांसलेशन, जी,
कई फानी कई कई, सिर्फ कई। ये आ रहा ना यहाँ पे कई अनसुरा, कई, कई एक खुद एक हर्फ है, वो इस्तेमाल होता है। तो कई अन की तरह है, थोड़ा सा तब्दील है, थोड़ा सा मतलब में तब्दीली आएगी। इसका मतलब होगा ताकि वो मदद करे, ताकि, ताकि बस ट्रांसलेशन में ऐड कर देंगे, कई का मतलब अदा हो जाएगा। तो कई अंसुरा, ताकि वो मदद करे, सो दैट ही विल हेल्प। ठीक है, ये कई से तब्दीली आएगी मतलब में। और कई से भी वही तब्दीली आती है मुजारे में जो अन से और लन से आ रही थी। अन और लन और कई, इनसे वही तब्दीली आएगी जो इन दोनों से पहले आ रही थी। ठीक है, जैसे कयन सुरा, कयन सुरा, कयन सुरु, नून गिरा दिया, जब पेश वालों को जबर दे दिया, और जहां पर नून जमा था उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया कई, यही इसका मजहूल देख लीजिए कई का। अब आ गया इजन, इजन आ गया इजन। इजन क्या करता है? इजन जो है तब के माना अदा करता है, तब। और इजन से भी वही तब्दीली होगी जो अनलन और कई से हो रही थी। अनलन कई इजन, अगर ग्रामर आप आगे पढ़ेंगे और तफसील के साथ, तो ये 4 हुरूफ ऐसे हैं जो एक जैसी तब्दीली करते हैं मुजारे में। जैसे अनलन कई इजन, ये चारों हुरूफ एक साथ आते हैं, मतलब लिखे हुए रहते हैं ग्रामर में कि इनका अमल एक जैसा है। इनकी वजह से मुजारे में ये तब्दीली होगी, यानी मुजारे पे जहां नसब आना चाहिए नसब आ जाएगा, जहां पे नसब नहीं आ सकता नून गिर जाएगा, ऐसा रहता है। तो इजई, इजई यंसुरा, इजई यंसुरा, इजई यंसुरा, इजई यंसुरु, इजन तंसुरा। तो देखिए क्या ट्रांसलेशन में चेंज हुआ। तब वो, तब तो वो मदद करेगा, तब तो, देन ही विल हेल्प, देन ही विल हेल्प, इजन, तब तो। इस तरीके का जब तर्जमा करना होगा ना, तो इजन लगाएंगे मुजारे पर, तब तो, फिर तो इस वजह से इजन लगाना पड़ेगा। और मजहूल में तब तो वो मदद किया जाएगा, फिर तो वो मदद किया जाएगा, और इंग्लिश में देन लगाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इजन लगाना है। थोड़ा सा ना सेंस को भी समझना पड़ेगा, उस हिसाब से आप लगा लेंगे जो भी लगाना होगा। अब ये आ गया इन, इन क्या तब्दीली करता है, अभी इन से पता चलेगा क्या तब्दीली होती है। इन आता है शर्त के लिए, यानी अगर मुझे कहना हो ये जाएगा तो मैं जाऊंगा, अगर ये मदद करेगा तो मैं मदद करूंगा, इंग्लिश में इफ लगाते हैं उसके लिए। इन यंसुर, अब इसमें क्या तब्दीली होती है मुजारे में, जहां पर पेश होता है वहां पर सुकून आ जाएगा, यानी वहां पर कोई भी हरकत नहीं पड़ेंगे। ई यंसुरु से ई यंसुर हो जाए, मतलब यंसुरु से ई यंसुर हो जाएगा। जो रा है, जो लाम कलीमा है, यानी यंसुरु में रा, उस पर साकिन हो जाए, वो उस पर सुकून आ जाएगा, कोई हरकत नहीं पड़ेंगे उस पर। ई यंसुर, ई यंसुरा, और जहां पर नून था वहां नून गिरेगा ही गिरेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जहां पर पेश आता है वहां पर सुकून आ जाएगा। अगर वो मदद करेगा तो इसके बाद एक और फेल लाना पड़ता है, यानी ई यंसुर अनसुर, अगर वो मदद करेगा तो मैं मदद करूंगा, इस तरीके से होता है। ई यंसुर अनसुर, तो इस तरीके से रहता है। ऐसे ही मजहूल में अगर वो मदद किया जाएगा तो इनसे जो है ये होता है। ऐसे ही लम, लम भी इनकी तरह ही काम करता है, लेकिन लम से क्या फर्क पड़ता है कि कोई भी काम जो पास्ट में हुआ हो और वो बिल्कुल करीब में ही हुआ हो, तो उसके लिए लम को इस्तेमाल करते हैं। यानी उसने मदद नहीं की, लम यंसुर, उसने मदद नहीं की। मा फाला और लम यंसुर, इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, वरना एक ही तरीके के होते हैं। मा फाला और लम यंसुर, इन दोनों का मीनिंग बराबर सराबर ही है। ठीक है, लम यंसुर का मतलब भी उसने मदद नहीं की, और मा यंसुर, मा नसरा, इसका मतलब भी होगा उसने मदद नहीं की। ठीक है, तो इससे वही तब्दीली होगी जो इन से हो रही थी, यानी जहां पर पेश है वहां पर सुकून आ जाएगा, और जहां पर नून है वो नून गिर जाएगा। ठीक है, और जमा मुअन्नस के नून को कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो लम यंसुर, ही डिड नॉट हेल्प, उसने मदद नहीं की। तो ऐसे ही आखिर तक होगा। मजहूल में भी यही है कि उसकी मदद नहीं की गई। लम युनसर, जैसे कि मान उसीरा था, उसी तरीके से। लम्मा, लम्मा और लम में ये फर्क है कि दोनों से तब्दीली एक जैसी होगी फेल में, लेकिन लम्मा का मतलब है कि अभी तक वो काम नहीं हुआ, यानी वो काम नहीं हुआ पिछले जमाने में, लेकिन अभी तक भी स्टेटस यही है कि वो काम नहीं हुआ है। तो लम्मा ये तब बताता है, यानी लम्मा जब हम करेंगे लम्मा यंसुर, तो इससे ये ट्रांसलेशन होगा ही डिड नॉट हेल्प येट। येट का ट्रांसलेशन इंग्लिश में आएगा और उर्दू में आएगा उसने अभी तक मदद नहीं की, यानी अभी भी वो काम जो है वो पूरा नहीं हुआ, वो एक्शन नहीं हुआ, वो काम अंजाम नहीं दिया गया अभी तक, यानी माजी में तो नहीं हुआ लेकिन अभी तक भी नहीं हुआ। तो ये लम्मा से ट्रांसलेशन में डिफरेंस आता है। लम्मा और लम में ये फर्क है। लम्मा मजहूल के साथ वो अभी तक मदद नहीं किया गया। ऐसे ही लामे अम्र, इसे पूरा कर ले या फिर छोड़ दे? वक्त हो गया अच्छा का, पूरा कर ले, ठीक है। तो देखिए तसरीफ फ़ेल मुजारे मारूफ मजजूम व लामे अम्र। लामे अम्र क्या होता है? इम्पेरेटिव मैंने ऊपर आपको बताया था। तो लामे अम्र से क्या ट्रांसलेशन में फर्क होता है? चाहिए के ट्रांसलेशन में डिफरेंस आएगा, चाहिए के ऐड हो जाएगा उसमें, चाहिए के। जैसे लियंसुर, अच्छा लाम, लामे मकसूर, लामे अम्र लामे मकसूर होता है, यानी उस लाम पर जेर आता है। एक हमने ऊपर लाम पढ़ा था लामे मफ्तू, उस पर जबर आ रहा था, उससे क्या ट्रांसलेशन में फर्क आ रहा था कि बात में ताकीद पैदा हो रही थी। और लामे मकसूर से क्या होता है? चाहिए के, ही शुड हेल्प और ही मस्ट हेल्प, इस तरीके का ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में। तो लियंसुर, और तब्दीली क्या आएगी मुजारे में? जहां पेश है वहां पे सुकून आ जाएगा, जहां पे नून था वहां गिर जाएगा, जमा मुअन्नस के नून को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा चाहिए के मदद करे, चाहिए के मदद करे वो एक शख्स। ऐसे ही आगे तक, चाहिए के मजहूल में भी यही होगा, चाहिए के मदद किया जाए वो एक शख्स। ठीक है, ये लामे अम्र हो गया। अब लामे नहीं, एक होता है लामे नहीं, एक होता है लामे नफी। लामे नफी और लामे नहीं में थोड़ा सा डिफरेंस है, लिखे एक ही तरीके से जाएंगे, बस थोड़ी सी तब्दीली होगी। लामे नफी जो होगा वो फेल मुजारे पर आएगा, जैसे ला यंसुरु, जिसका तर्जुमा होगा नहीं करता है या नहीं मदद करता या नहीं मदद करेगा वो एक शख्स, या वो मदद नहीं करता है या नहीं करेगा। लेकिन लामे नहीं में क्या ट्रांसलेशन होगा कि नहीं मदद कर, या मत मदद कर, या ना मदद करे। अब इन्होंने यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देके थोड़ा सा दिलचस्प बनाने के लिए ट्रांसलेशन में चाहिए के ऐड कर दिया है। ठीक है, चाहिए के से भी हो जाएगा, लेकिन असल जो सेंस है वो ये बता रहा है कि लामे नहीं में क्या होता है, किसी काम से रोकना होता है। तो ट्रांसलेशन यूं भी हो जाएगा चाहिए कि वो मदद ना करे, या फिर यूं भी हो जाएगा कि मदद ना करे वो एक शख्स, मदद ना करे वो एक शख्स, ही शुड नॉट हेल्प, ही शुड नॉट हेल्प। ला यंसुर, तो वही तब्दीली होगी जो ऊपर इनमें हुई, उसके बाद लामे अम्र में हुई और अब यहाँ हो रही है। ठीक है, ला यंसुर, जब पेश की जगह सुकून आ जाए तो लामे नहीं होगा, और जब पेश की जगह पेश ही रहे तो लामे नफी होगा। ठीक है, बल्कि ला है ये असल में, ये लाम इन्होंने कह दिया, ये ला है, लाम सिर्फ लाम ही होगा, और लाम के बाद अलिफ लगा दें तो उसे ला पढ़ना चाहिए। अब मुसन्निफ ने इसे लाम कहा है तो कोई बात नहीं। तो मजहूल में भी देख लीजिए, चाहिए कि मदद ना किया जाए, इन्होंने किसी वजह से चाहिए का तर्जमा किया है, तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई हरज नहीं है इसमें। अब देखिए नूने सकीला क्या होता है? नूने सकीला, इससे थोड़ा सा बात में ना जोर पैदा होता है, बल्कि ज्यादा ही जोर पैदा हो जाता है। इसमें क्या होता है, फेले मुजारे पर
شروع میں لام لگائیں گے جو کہ اوپر ہم نے لگایا تھا. کون سا والا لام؟ لام مفتوح. اس سے بعد میں تاکید پیدا ہوتی ہے. لیکن اور تاکید پیدا کرنی ہو تو آخر میں نون ثقیلہ لگا دیں گے. نون ثقیلہ لگا دیں گے. تو اس سے کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ البتہ وہ ضرور مدد کرے گا. however he will surely help. he will surely help. he will definitely help. لا ینصرن. لا ینصرن. اچھا، نون ثقیلہ سے پہلے جو بھی حرف ہوتا ہے، جو 5 حروف ہیں، وہ حروف جو 5 الفاظ ہیں جن پر پیش آتا ہے نون ثقیلہ سے پہلے، ان پر زبر آتا ہے. جیسے کہ اس والی مثال میں لَيَنْصُرُ سے لَيَنْصُرَا ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد نون ثقیلہ آ رہا ہے. اس والی مثال میں دیکھیے نون ثقیلہ آ رہا ہے لَيَنْصُرَنَّ. اور ایسے ہی آگے تک چلیں گے. ان کو نا گردان کو آپ یاد کر لیجئے، کیونکہ اس میں اگر میں آپ کو بتاؤں گا نا کیا کیا تبدیلی ہو رہی ہے تو آپ کے ذہن سے بات جو ہے وہ ہٹ سکتی ہے. تو آپ بس ان کو سیکھوں کو یاد کریے کہ کس سیکوینس میں ہے یہ. لَيَنْصُرَنَّ لَيَنْصُرَانِّ لَيَنْصُرُنَّ لَتَنْصُرَنَّ لَتَنْصُرَانِّ لَيَنْصُرْنَانِّ لَتَنْصُرَنَّ لَتَنْصُرَانِّ لَتَنْصُرُنَّ لَتَنْصُرِنَّ لَتَنْصُرَانِّ لَتَنْصُرْنَانِّ لَنْصُرَنَّ لَنَنْصُرَنَّ. ایسے آپ کو اس کی ٹیبل کو یاد کرنا ہے. اور ابھی تک جتنی بھی ٹیبل آئی ہیں ان میں سے کچھ سمجھنے والی ہے اور اکثر یاد کرنے والی ہیں، تو وہ یاد کی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اس میں اب نون ثقیلہ مجہول آ گیا. یہ ابھی معروف ہم نے پڑھا تھا. البتہ وہ ضرور مدد کیا جائے گا، اور یہ اس کو فیوچر میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں فیوچر کا مطلب آ جائے گا، آئندہ زمانے کا، موجودہ کا نہیں رہے گا پھر نون ثقیلہ لگانے سے. اچھا، نون خفیفہ ہے یہ. اس کا بھی مطلب سیم ہی ہوتا ہے. بس کیا ہے، یہ نون خفیفہ ہے، یعنی یہ 2 نون نہیں ہے، سنگل نون ہے. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے، نون خفیفہ میں سارے سیغے نہیں آتے، کچھ آتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اس میں کچھ آتے ہیں، پورے 14 نہیں ہوتے اس میں. سب میں نہیں لگتا ہے نون خفیفہ، کچھ میں لگتا ہے. اور اس کا اور اس کا فرق بس اتنا ہی ہے کہ وہ نون 2 ہوتے ہیں، یہ نون 1 ہوتا ہے. اچھا، اس کا فائدہ کہاں پتہ چلے گا آپ کو؟ اس کا فائدہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ لٹریچر پڑھیں گے یا آپ اشعار وغیرہ اور عربی ادب میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نون خفیفہ نون ثقیلہ میں ڈیفرنس کرنے کی کیا وجہ تھی. یعنی مطلب نون خفیفہ الگ سے کیوں بنا دیا، جبکہ ترجمے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ترجمہ دونوں کا سیم ہی ہوگا، لَيَنْصُرَنْ کا اور لَيَنْصُرَنَّ کا. وہ ضرور مدد کرے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ ان دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ یہ نون خفیفہ 1 نون ہوتا ہے، نون ثقیلہ 2 نون ہوتے ہیں. اور یہ سب میں نہیں آتا ہے 14 میں، یہ کچھ میں آتا ہے. جیسے کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 سیغوں میں آتا ہے. 6 سیغے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. صرف 8 سیغوں میں آئے گا. اس کا مجہول یہ ہے لَيُنْصَرَنْ، وہ مدد کیا جائے، وہ ضرور مدد کیا جائے گا. he will be surely helped. تو یہاں پر یہ سبق مکمل ہو گیا ہمارا. مضارع ہم نے پڑھ لیا. بہت ساری گردانیں تھی یہاں پر، ہو سکتا ہے کچھ دشواری ہوئی ہو، لیکن بس یہ ہے کہ اس کو یاد آپ کو کرنا ہے. کوئی بھی چیز نہ سمجھ آئی ہو پوچھ لیجئے. کلاس کو اینڈ کرنے والے ہیں. آج کی کلاس لمبی ہو گئی. کوئی سوال ہے یا کلاس کو اینڈ کر دے؟ ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، کمنٹ ضرور کریں، اس سے تھوڑی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور ویڈیو کو یوٹیوب جو آگے ریکمینڈ بھی کرتا ہے لوگوں کو.